Assalamu alaikum, dear students. We are discussing electromagnetic waves. This topic very small, but one question in your exams. So don't leave this topic to go through because it will easily give you one question, and I will tell you all the parameters of the questions which are going to be asked in this very chapter. So 4 marks of entrance, 4 marks is here. But see all the series of the electromagnetic waves. What is electromagnetic wave? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, इट इज अ वेव. ये वेव है. वेव मीन्स इट्स अ डिस्टर्बेंस दैट ट्रांसफर्स एनर्जी. So it's a wave that consists of oscillating electrical and magnetic fields perpendicular to each other and perpendicular to the propagation of wave. यानी अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड along the x axis होगा, हम ऐसे लेंगे, let this be x, this be y, this be z. अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे है, this is the oscillating electrical field, this is the oscillating, it varies along y axis. So it oscillates along y-axis but propagates along x-axis. ठीक है. अब दूसरा, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये वैरी कर रहा है along z-axis ऐसे. It varies along z-axis. But both are propagating along x-axis. This is E, this is B. इसको हम कहते हैं. तो इस नेचर से आपको ये बात भी पता चली कि electromagnetic waves are transverse in nature. And when they are transverse, they can be polarized. ठीक है. तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डेफिनेशन विच यू ऑल नो वेरी वेल. ठीक है. तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज एंट्रेंस के लिए क्या है? E and B are perpendicular to each other and as well perpendicular to the direction of the propagation. That means अगर electrical field along y-axis है, that's J cap, magnetic field along z-axis है, that's K cap, तो जो C की डायरेक्शन होगी, velocity of the wave की जो डायरेक्शन होगी, that will be along I cap. That means the direction, this is very important point, of electromagnetic wave is given by this. You have to see what is the E cross B. It's a cross product of E and B, and you know क्रॉस प्रोडक्ट से जो तीसरा वेक्टर आता है, वेक्टर थर्ड वेक्टर, उसकी डायरेक्शन रहती है परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी. ये देखो यहां, अगर ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो प्रोपगेशन यहां से होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन यहां से होगी. तो कभी कभार आपके एग्जाम में यही पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ द electromagnetic wave. So E cross B gives you the direction of electromagnetic wave. So V is neither parallel to E, velocity of wave is neither parallel to B. Velocity of wave is perpendicular to the plane containing electrical field and magnetic field. ठीक है. ये उल्टा भी हो सकता है, बस आपको ऐसे जहन में रखना है. इसके बाद आपको दूसरी चीजों पता होनी चाहिए, दैट इज रेफर्ड टू एज सोर्स of electromagnetic
मैग्नेटिक वेव। जब हम सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं, द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो सोर्स है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी एक्सेलरेटेड चार्ज, और आई कैन से चार्ज इन ऑसिलेशन। एक्सेलरेटेड चार्ज मतलब देखिए, व्हेन चार्ज इज स्टैटिक, स्टैटिक चार्ज यानी जब चार्ज रेस्ट पे होता है, तब इसके साथ एसोसिएट हो जाता है इलेक्ट्रिकल फील्ड। जब चार्ज मोशन में होता है, यूनिफॉर्म मोशन ऑफ चार्ज, व्हेन चार्ज इज इन यूनिफॉर्म मोशन, it is associated with electrical field as well as magnetic field. But neither the electrical field is varying, neither the magnetic field is varying. Now the third thing is accelerated charge. Accelerated charge जो है, it gets associated with varying electrical field and varying magnetic field, and they too constitutes electromagnetic wave. Accelerated charge की example आप ले सकते हैं, चार्ज को oscillate करवा दीजिए, चार्ज in oscillation. When charge is in oscillation, it results in the formation of electromagnetic wave. यानी it will give rise to varying electrical field, varying electrical field will give rise to varying magnetic field, varying magnetic field will give rise to varying electrical field, and this goes on and you are getting a wave. This is what we call as source of electromagnetic wave. ठीक है, अब देखिए कॉन्सेप्ट ये कहां से आ गया, that electrical field, varying electrical field gives to varying। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा मैक्सवेल्स इक्वेशंस पर। गौर से देखिए, मैक्सवेल्स इक्वेशन, मैक्सवेल्स इक्वेशन रिलेट्स द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म एंड गिव राइज टू द ब्रांच इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। देखिए, मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन दी। पहली इक्वेशन इसने दी जिसको हम जानते हैं गॉसेस लॉ के हवाले से। तो गॉसेस लॉ क्या कहता है, electrical flux over a surface is the integral of E dot ds, which is equal to charge enclosed by epsilon naught. This is what we called as Maxwell's first equation. ठीक है, and इस इक्वेशन से क्या पता चला, इस इक्वेशन से हमें पता चला चार्ज exists as monopole. चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है as a monopole ठीक। Number 2, another one that is called as Gauss's law in magnetism. Gauss's law in magnetism, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू 0। यानी अगर कोई सरफेस एक मैग्नेट को एनक्लोज करेगा, हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स इसका 0 होगा। यहां से पता चलता है मैग्नेट जो है, it will never exist as monopole. It shows magnet always exists as dipole. Number 3 Maxwell's equation is, number 3 Maxwell's equation is जो हमने पढ़ा भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, induced EMF is rate of change of magnetic flux.
whenever magnetic flux changes it give rise to induced EMF. क्या induced EMF की जगह नहीं हम लिख सकते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड भी, क्योंकि पता ही है आपको पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, and it is this relation that give rise to the concept that changing magnetic flux give rise to the electrical field. Equal to minus d phi b by dt. So it relates, what this relation does, it relates electrical field with changing magnetic flux. अब देखिए यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स तीन फैक्टर्स पे डिपेंड है. मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड है मैग्नेटिक फील्ड पर, मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड है एरिया पर, मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड है ओरिएंटेशन पर. क्या मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स चेंज नहीं हो सकता है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से? और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, समझिएगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड वहां पे सेटअप होगा. सो दैट्स व्हाट वी से टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड. मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना चाहिए. सो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड विल गिव राइज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड. नाउ द नंबर फोर्थ इज दैट इज, अब अगर हम लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं ओवर ए क्लोज्ड पाथ, वी कैन से, ठीक, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ दैट इज इक्वल टू, according to the Ampere's law, that's equal to mu naught times current enclosed. But this concept, it was Ampere's law, but later on it has been modified. जैसे आपने 12th में पढ़ा होगा, it has been modified by Maxwell. और मैक्सवेल ने इसमें क्या कॉन्सेप्ट दिया? I will explain that later on. मैक्सवेल ने इसमें कॉन्सेप्ट हमें दिया. उसने कहा ये I नहीं है, ये I प्लस आई डी है, जहां पर ये आई डी जो है ये होगी डिस्प्लेसमेंट करंट. दिस इज एक्चुअल इक्वेशन. नाउ अब मसला है यहां पर समझना ये डिस्प्लेसमेंट करंट होता क्या है. तो थोड़ा सा यहां पे मैं आपको बता दूंगा कि ये डिस्प्लेसमेंट करंट है क्या. तो देखिए गौर से आप, जब हम एक कैपेसिटर ले रहे हैं और इस कैपेसिटर पर ये जो चार्ज है इट्स चेंजिंग, इट्स वैरिंग विद टाइम, चार्ज इज वैरिंग विद टाइम, उससे क्या होगा, इस स्पेस में वैरिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड बनेगा. क्या बनेगा? वैरिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड. ठीक है, तो हम कहेंगे यहां पे वैरिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड बराबर होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, बट दिस सिग्मा इज ऑल्सो वैरिंग विद टाइम. यानी इस कैपेसिटर के प्लेट्स पर चार्ज जो है ये वैरी हो रहा है, ये एक्सेलरेटेड चार्ज है, ये ऑसिलेटिंग चार्ज है. ठीक, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, पोलैरिटी भी चेंज हो रही है. तो ये एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड बन गया. तो यहां आप बेटा बड़े गौर से सुनेंगे, जब ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड बन गया, क्या हम नहीं लिख सकते हैं E ऑफ टी इज इक्वल टू सिग्मा टी की जगह लिखेंगे Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट. इसको आप यहां लेंगे E ऑफ टी into A epsilon naught is equal to Q of T. So see here, a very important thing will be here. So you have got QT is equal field into area, this is electrical flux, और साथ में आ गया epsilon naught. कीजिए डिफरेंशिएट. ये तो मुझे एंट्रेंस के हवाले से नहीं कहना था, अब थोड़ा सा यहां पे मैंने आपके लिए, चार्ज में टाइम तो करंट होती है, बट सी
this current is because of what? This current is because of changing electrical flux. And electrical flux is here changing because of changing electrical field. So changing electrical field give rise to the another current, and this current came to known as displacement current. जो करंट वायर में होती है बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, वहां पर जो फ्लो चार्ज होता है वायर में फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, उस फ्लो ऑफ चार्ज से जो करंट बनती है उसको हम कहते हैं कंडक्शन करंट। इस करंट को कंडक्शन नहीं, इसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट करंट। यही मॉडिफिकेशन दी, क्योंकि जब हमने यहां पर एम्पियर सर्किट लॉ लगाया वो फेल हो गया, इसलिए मैक्सवेल ने एम्पियर सर्किट लॉ को चेंज किया। तो उसने कहा ये जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है इट इज म्यू नॉट आई प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट इज आई डी, and you know it very well. Mu naught I plus. What is displacement current? Epsilon naught d phi E by dt. तो यहां नहीं आपको पता चल रहा है this relation actually relates electrical flux with the magnetic field. यानी जब इस रीजन में इलेक्ट्रिकल फील्ड चेंज होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से वहां पे करंट आएगी, एंड दैट करंट डज नॉट नीड एनी मीडियम। डोंट मिक्स दिस करंट विद कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट के लिए जरूरी वायर का होना है, नहीं, इस करंट का नाम कंडक्शन करंट नहीं है, इस करंट का नाम डिस्प्लेसमेंट करंट है। और ये डिस्प्लेसमेंट करंट का काज क्या है? चेंजिंग इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। यहां पे इलेक्ट्रिकल फ्लक्स किस वजह से चेंज हुआ? यहां पे इलेक्ट्रिकल फ्लक्स फील्ड के वैरी होने से चेंज हुआ और उस वजह से करंट बन गई। इस करंट की वजह से वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। सो इस तरीके से मैक्सवेल ने आपको ये चीज समझाई कि वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिकल फील्ड बनता है और वैरिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। इसी वेव का नाम पड़ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यही तो हम कह रहे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट्स ऑफ वैरिंग इलेक्ट्रिकल and magnetic fields, oscillating electrical and oscillating magnetic fields. So this is what we call as concept of displacement current. तो कभी कभार आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा देखने के लिए, what is dimensional formula of epsilon naught d phi E by dt? What is the dimensional formula of epsilon naught d phi E by dt? So if you know, you will write its dimensional formula is A, ampere. करंट। अब फर्क ये, कंडक्शन करंट को वायर की जरूरत है, डिस्प्लेसमेंट करंट को वायर की जरूरत नहीं है। कंडक्शन करंट इज बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एंड डिस्प्लेसमेंट करंट इज बिकॉज ऑफ वेरिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड। सो ये चीज आपको पता होनी चाहिए फ्रॉम द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। I will do it more in the next video.